مسیح ڈان دا میدان عہد امیر حمزہ نو شہید کیتا آج حضور نے معافی دے دیتی لیکن ساری زندگی دوبارہ حضور نے فرمایا سی تو میرے سامنے نہیں آنا اے واحد صحابیاں جنہاں صرف حضور نے ایک باری ویکھیا تے جدوں بھی حضور دے سامنے آ جاندے سن نا اچانک پھر نگاہاں نیچی کر لیندے سن کہندے حضور نے منع جو کیتا نہیں ویکھنا ایک باری ویکھیا واسی بن عرب ہاں جی لیکن مجدد الفسانی لکھیا کہ صحابی کی شان کیا ہے امام ربانی مجدد الفسانی فرمانے ایک واحد صحابی جنہاں ایک بار حضور دے چہرہ انور ویکھیا مجدد الفسانی فرمانے واشی بن حرب جنہوں نے صرف حضور کا ایک بار دیدار کیا اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود تابعین میں سب سے افضل ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے کیوں جی ہاں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو ویسے کرنی چھو بھی نہیں سکے لو جی حضور نے فرمایا مسیح پہلے ڈھاڑی پھر جلانی کیوں حضور نے فرمایا پہلے ڈھاڑی پھر انہاں تک کیسی لذل علت والحاجت واللیلت المطیرت حضور دے سامنے جے تو جھوٹ بولیا تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ فاش نہیں نہ کیتا اے بیماراں واسطے مسیت نہیں بنی اے رات دیاں تاریکیاں واسطے نہیں بنی اے بارشاں واسطے نہیں بنی یا اللہ پھر کسے واسطے بنی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانا على تقوى آگے جی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانا على شفا جرف حار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہد القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم کیوں جی انہوں نے کیا نا ہم نے این جی اوز ہم نے غریبوں کے لیے اسپتال بنایا میں کہا نا غریبہ ہونا کیسی ہے غریبہ واسطے مسجد بنائی اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ چھپایا تے رب دستا ہے مسجد کنا بنائی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا میرے حبیب انہاں مسجد بنائی کیڑی جی ضرار اے تمباکو ہے سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے ادر یضر اضرارا فهو مضر وادر یضر اضرارا فذاک مضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لا یضر لا یضر لن یضر لن یضر الامر منه ادر ادر ادرر لتضر لتضر لتضرر ليضر ليضر ليضرر ليضر ليضر ليضرر والنهي لا تضر لا تضر لا تضرر لا تضر لا تضر لا تضرر لا يضر لا يضر لا يضرر لا يضر لا يضر لا يضرر الظرف منه مضر مضران کیوں جی تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے مضر مسجد ضرار فرمایا میرے حبیب مسجد مضر جی میں تمباکو نوشی مضر اے مسجد نقصان دے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا میرے حبیب اے غریبہ مسکینہ واسطے نہیں بنی اے رات دی تاریکیاں واسطے اب نمازیاں دی آسانی واسطے نہیں بنی میرے حبیب دی بنیاد کفر ہوتے آگے جی وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ میرے حبیب اے مسجد اس واسطے بڑی تاکہ مسلمانوں دے اندر پھوٹ پا دے کچھ صحابہ انجو جانتے کچھ انجو جانتے اور کدے واسطے بڑی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میرے حبیب اے انہوں تمام قوتوں واسطے بڑی ہے پناہ گاہ جڑے اللہ دی بھی دشمنان تے رسول دی بھی دشمن اور سمجھ آئی مسیح دی منافق کبھی کہتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں منافق تے حضور کے سامنے بھی کہتے ہیں ہم نے جناب مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے میرے آقا فرمایا انہوں ڈھاؤ نمازیاں سمیت انہوں چلا جاؤ حضرت مالک بن دخشن جدو چلے نا صحابہ نو لے کے
آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ اپنے گھر گئے تے وڈے وڈیاں جناب وہ کھجور دیاں ٹہنیاں نو اگ لا کے مغرب تے عشاء دے درمیان حضور نے فرمایا نو دھا دینا نہ جلا دینا. انہاں سیدھی اگ جا وچ واڑی, وچ جا واڑی سیدھی. کیوں جی؟ اور نبی کی عزت کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں جی؟ ختم نبوت کے منکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی. انہاں سیدھی جا اگ واڑی کو انج جا کے نسیا, کو انج نسیا باہر, پھر مسیت ڈھا دیتی, پھر جلا دیتی. کیوں جی؟ جب دین نہیں پڑھا تو پھر دین کی ترجمانی کے لیے دین پڑھو, سبھی ٹھیک ہے. پھر مسجد مدینے بنی ہوئے, پھر آپ فرمائے میرے حبیبی نو جلوا دو. وہ تو پتہ ہے کی ہوندہ سی جناب میاں صاحب؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا تفسیر مظہری اور سبل الہدیٰ امام شامی. میں ویسے حوالے زیادہ اس واسطے بھی نہیں دیندا, جس قوم نو کل واللہ نہ دی ہوئے انہوں کی پتہ سبل الہدیٰ والرشاد کیا ہوتی ہے. اسی جب دین آنا ہے نا, ہر بندے نو پتہ ہونا ہے مشکات شریف کس کو کہتے ہیں. ہاں بخار بس تسی اپنے سینے بالکل کھول دیو. حضور دی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات. انہوں نے کہا داسو مولانا رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے, اور داسو مولانا انگلیاں مبارک وہ کیسی تھی کہ میدان حدیبیہ میں حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا تو چشمے جاری ہو گئے. اور داسو مولانا وہ پانی آیا کدھروں, اور 1400 صحابہ پیتا. ہاں جی, سواریاں پانی لایا, سارے صحابہ وضو کیتا, اور 10 پانی آیا کتھوں. بعد جابر بن عبداللہ کو تابعین نے پوچھا, انہوں نے کہا کتنے سی؟ فرمایا ایسی تو 1400, یہ لاکھ بھی ہونا تو پانی پورا ہو جانا سی. تاجدار ختم نبوت. اے بادشاہوں, جڑا آیا نا دین آیا, وہ کہنے سن دین جیسی بنایا سا ہوا جی میں سیدھا سادہ مسلمان. اور بچہ بچہ کہنا آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا. ساڑیاں بچیاں اندر بیٹھ کے کہنی بس ہی بس دین لاؤ. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, ہاں جی. دالاں دی قیمت مہنگی ہو جائے تو سموٹو ایکشن لیندے ہیں, تے ختم نبوت تے حمل ہویا تے تہاڈا سموٹو ایکشن کدھر گیا بھائی؟ بلکہ پوچھتے مولویوں کو روٹی کون دیتا ہے, ان کو پانی کون دیتا ہے؟ میں کہا کوئی بھی نہیں دیتا, کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہاں کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی, کون ہم ایک دن بھی ہمیں کوئی غیر بندہ روٹی نہیں کھلا سکتا تھا. ساڑھے کو میں خود پریشان, میں نے لاہوروں چلن لگیا سارے کیا لکھ کروڑا دا خرچہ ہے, کنج ہوئے گا؟ میں کہا کنج رہے ہو پترو, کنج ہوئے گا؟ کیا بات ہے, میں کہا کنج ہوئے گا جنہ دا کام میں ہو جانا نہ دا کام جانے. کیوں جی؟ میں فرشتے نہیں ویکھے, لیکن میرا ہمیشہ ایمان رہا کہ گھر ستے فرشتے نہیں آندے. ہاں جی, گھر ستیا نہیں آندے, گھر ستیا آندے تو حضور بدر تشریف نہ لے جاندے. ہاں جی, بدر پہنچ کے فرشتے آندے. ہاں بالکل, پہلے پہلے فرشتے نہیں آندے تو پورا امتحان لے کے آندے. 8 تلواریں آوان دے بندہ آدھا, ہاں اس طرح پھر فرشتے آندے. جی کاشف بھائی ماشاءاللہ, اللہ اکبر. یہ قبر حضور نے پوچھ لیا تیرے کو چل رافضیہ اتے آ, اور رافضیہ انی تک ہمت اتے آ, رافضیہ مرے تو بکواس لگا کہ بیگ تھلے. اے بیکو جی رافضی صاحب اتے آن لگے نے. رافضی صاحب اتے آؤ نا ذرا, کال پاؤ. حرام خور نہ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. جی بالکل ہے جی, ماں ہی مر جانی ہے انہاں دی. یہ جڑے مرزئی بنے پھردے نے مرزا جینیاں نو منن والے.
ਮਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਕਲਣੀ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਓਏ ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਰਾਰ ਆਹੋ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ- ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਾਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫ ਜੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ। ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਬਕਵਾਸ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ। ਰਫ ਜੀਆ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ। जी ये हमारे साथ एक भाई आए हैं अलिफ बेर है, पता नहीं अभी मैं देखता हूँ मतलब इसका बनता क्या है। अच्छा अच्छा अबरार साहब, हाँ जी अबरार साहब बोले आप। अबरार हेलो अबरार लो जी ਸਿਰਫ जी मत ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਰਫ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚ। ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਮ ਸਭ ਕਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਤੂੰ। हाँ जी मक्खन मलाई। ਏਡੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਣਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਫਜ਼ੀ ਸੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਫਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਫਜ਼ੀ ਮੁੱਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਖੋਰ ਮਰਜ਼ਈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਸ਼ਰਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਗਰਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਨੂਬ ਚਲੇ ਜਾਣ, शुमाल चले जान, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, भले खाक हो जाए जल जाने वाले। सिंपल, बेशक कोई शक नहीं तो सब, कोई शक नहीं सब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ भाई बैड लैंग्वेज होती क्या? बैड लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज। और मिर्जा आप लोगों का जो है वो अबिया पे बकवास कर रहा है बैठ कर, और आप हमें आके बोलते हैं बैड लैंग्वेज बैड लैंग्वेज। कौन आया जी? हिंट देखिए। हाँ जी यूजर साहब बोलो। हेलो यूजर। ओ यूजर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ जी आवाज आ रही हूं तेरी, बोलो। आंदी पई बोल हुण। जी जी ये मिर्जे का लगाया हुआ, ये मिर्जे का, आपको नहीं पता इसका मिर्जे का? अच्छा नहीं पता। अब भाई वो जिसका भी लगाए फोटो, देखो मेरी बात सुनो, वो जिसका मर्जी फोटो लगाए,
جب میرے آقا کی توہین ہوگی شاتمیت ہوگی تو ہم میرا بھائی نہیں رکیں گے، جس کی مرضی فوٹو کو لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہو؟ او بھائی آپ کے جو علماء ہیں، صحیح علماء ہیں، کیا وہ میرے آقا کی ذات سے بڑھ کے ہیں؟ آپ کو یہ فکر ہو رہی ہے صرف کہ جی وہ جو دیکھیں جی مرزے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جی جو یعنی کہ اس طرح کے جو بغیرت خنزیر ہے جی، آپ جب مرزے پہ بولتے ہو تو جی وہ ان کی جو ہے نا علماء کی جو ہے نا فوٹویں وہ لگاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ شیعوں سے بھی بڑھ کے زندیق ہے۔ ہاں، اس کا نام جو ہے نا مرزا انجینئر ہے، محمد علی مرزا انجینئر۔ یہ زندیق ہے، زندیق۔ جی بالکل ہدایت ملتی ہے جس بندے نے غلطی کی ہو، جو بندہ شاتم ہو نا اس کو نہیں ملتی ہدایت۔ مرزا نے کیا کیا ہے یہ جی آپ کال پہ آ کے پوچھیں نا، مرزا نے کیا کیا ہے، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں جناب۔ ہاں جی جی، وعلیکم السلام۔ آخری موت صاحب گل چھیڑی ہے مرزا انجینئر تھے، یہ بڑا بڑا مشرک ہے۔ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੈ ਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਲੰਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਲੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ایک خدا جو ساری قدرتوں کا سن مالک نا ہے سن اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو ذرا سن ادھر تو میں کسی قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ ہاں پھر بول ہون مشرک ہے کہ نہیں مشرک؟ اوے اپنے بارے چ بولدا پیا، اپنے منن والے دے بارے چ بولدا پیا۔ تو یہ دس مینوں کہ کی میری گل سن، کوئی منی خدا میں ویڈیو کتوں بھیجاں تینوں؟ گل تے سن لے پہلے۔ کیا کوئی منی خدا بن سکتا ہے یا کوئی منی خدا ہو سکتا ہے؟ آہو تے بالکل یہی ہے، سارے مسلمانوں کا یقین یہی ہے کہ مسلمانوں دا بس ایک ہی رب ہے، یعنی کہ ایک ہی خدا ہے جی، ایک ہی اللہ ہے۔ لیکن یہ مرزا آندا پیا ہے کہ یعنی تسی نا جڑا نا منی خدا بن جاؤ گے اون دے جننے منن والے نے، یہ تے پکا مشرک ہویا نا پھر۔ شیر ہونی نہیں نا لیپ ٹاپ وچ پئی ہے نا بھرا، تو آنا تے سنا دینا میں تینوں ایتھے
ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੋਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਆਣਾ ਪਿਆ ਗਲਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਖੋ ਗਲਤ ਹੈ ਵੇ, ਆਖੋ ਹੈ ਗਲਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਹਾ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਹਾ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਲੈ ਵੇਖ ਸੁਣ। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वो चीज के सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसमें बहुत कमीनियां हैं। अल्लाह रोक ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਓ ਹਾਂ ਲਾਨਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल जी, मिर्जा ते लानत हो गई जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। मुशरक जी, मुशरक है, बिल्कुल मुशरक है। ਜੀ बस ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਲਤ ਵੇਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। भाई जान मेरी गल सुनो ते कुछ तुसा आखा मैं उस टॉपिक चेंज कीता। हुन तुसा की करना कि हर किसी ने क्या नाम हुक्मराना ने भी भेजो लानी है, उन्हां दी भी लानत तुसा भेजनी है कि ना फ्रांस वाले सफीर ते कबूल कीता गया ना, समझ आई ने, चाहे पटवारी विच होन, चाहे जर्नैल विच होन, चाहे किस विच होन। यार वे मेरी गल सुन, एक भाई वेख मेरी गल सुन कितना बड़ा साड़ा यार, मेरी गल सुन आखिरी मौत साहब, मेरी गल सुनो। वेखो ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ। ना ठीक है, बिल्कुल। मैं तो सुना खाना मैं लानत पे भेजना वास्ता जी माशाल्लाह मुबारक होए भाई। समझ आए ने। मैं चीज़न क्योंकि सब तो पहले तो साडा एक रब है, उस तो अलावा ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਵਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾ? ਜੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? देखो मैं तो इतना इस चीज़ों पे इल्म नहीं करना ने, समझ आई ने। माँ के जो अपने माँ प्यो सिखाया है ठीक है, अपने उस्तादा केड़ा सिखाया है। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं दसना मैं जी कि रब ने आगे सजा है, किसी आगे सजा नहीं आया है, समझ आई ने। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਜਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈਲੋ ਅੰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਬੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। नहीं कह जो नहीं आकर लेकिन लोग करना ना ये तो ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਾ ਲਾਨਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਵੇਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਜਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਨਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜਨਾਬ? ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲੋ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਊਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। हेलो जी फैजान भाई आप फ्री हैं तो करें फरूक सोलंकी साहब से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, की हाल ने? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤਾਰੁਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਦਸ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਮ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਚਲੋ ਆਲਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਗਈ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ मैं अर्ज कर दिंदा फैजान भाई ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਮਿਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਨੇ? ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ, ਆਲਮ ਵੀ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਆਲਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਓਏ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਚਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੰਨਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਫਾਰੂਕ ਉਹ ਸਲੰਗੀ ਕਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਾਰੂਕ ਸਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਓ ਤਾਲੀਮ ਆ ਮੇਰੀ ਸਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ। ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਨੇ? ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ? ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ? ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਰੰਡੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਆ? ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਰਾ ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ। ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਾਮੀ। ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਬੀਸਾਂ ਨੂੰ। जी फैजान भाई ये आए हैं, वही इनसे बात। जी ए साहब, आपका नाम क्या था? हेलो, आवाज़ आ रही है जनाब? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام علی من تبع الہدی. جی جناب، آپ کا نام؟ میرا نام عارف ہے. عارف صاحب. اچھا جی عارف صاحب، کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، گفتگو تو میں یہی کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے یہ جو مرزا کیا نام ہے اس کا، مجھے نام انجینئر، یہ تو انجینئر ہمارے محمد علی جیلم مرزا. جیلم جیلم کے ہے، جیلم کے ہیں، جیلم کے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہاں، تو یہ تو کہتے ہیں بابے تو شے ہی کوئی نہیں. تو آپ بتائیں نا کہ پھر بابے کیسے شے ہیں؟ اچھا، تو آپ مرزا صاحب کے نظریات کے قائل ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے، بس آپ مجھے قائل کر دیں تو اب میں اس چیز دیکھیں کو. نا، میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، غصہ نہ کیجیے گا، مثال دینے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب حرامی بھی ہیں اور حلالی بھی ہیں. مثال دیا، معذرت، غصہ نہ کیجیے گا. اب نہیں، میرا یہ وہ کہنا تو درست آپ ہوگا؟ اپنے ڈی این اے نہ بتائیں نا، آپ مجھے جواب نہیں، دیں، آپ اپنا ڈی این میں اے نہ بتائیں جناب، مجھے. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اسی وجہ سے کہا غصہ نہ کیجیے گا، تاکہ وہ اگلے بندے نہیں، کو یہ بات دیکھ آپ کر اپنی مثال نہیں، یہ مثال مثال دینے آپ لگا ہوں خود نا. پہ بھی دے لیتے نا. کیونکہ میں تو ایسا نظریات کا قائل ہی نہیں نا، میں تو یا کسی کو صحیح کہتا ہوں یا کسی کو غلط کہتا ہوں. یہ درمیان والا راستہ مجھے یقین ماننے نہیں آتا. نہیں تو واقعی نا، یہ بابے تو شرک ہیں، واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کے اچھا، سامنے جھکنا، یہ بابے دربار شرک ہیں؟ مزار شرک ہے، یہ ہاں صحیح ہے. اچھا، صرف اللہ مزار سے شرک مدد ہے؟ مانگنی چاہیے، اچھا قرآن میں ایک بھی لکھا منٹ ہوا ہے کہ یار، اللہ سے او مدد مانگنی یار، چاہیے، اللہ کے بریک تے علاوہ پیر کسی تے سے نہیں رکھو، مانگنی. بریک تے پیر تے رکھو. کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں سارے. ایک منٹ ٹھہریں. آپ کو توحید کی تعریف آتی ہے؟ نہیں، آپ بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آپ کہاں پہ یہاں لکھا پر ہے کہ آ کر بابوں سے آپ نے مانگنا سب جائز کو، ہے؟ آپ یہاں پر آ کے آپ نے سب کو مشرک تو پجاری تو فلاں فلاں کہنا شروع کر دیا. مجھے لگا ہے شاید آپ جو ہیں بہت بڑے وہ محدث ہیں کوئی. آپ مجھے نہیں، یہ میں کسی بتائیں کو کہ مشرک کہہ ہی نہیں رہا، میں نے اچھا کسی کو اچھا مشرک بولا چلیں ہے؟ میں ٹھیک نے ہے. کسی کو نہیں مشرک نہیں نہیں بولا. نہیں ہے کوئی مشرک نہیں. ٹھیک ہو گیا، اچھی ہاں. بات ہے. چلیں اب سارے حضرات نے نوٹ کر لیا آپ کسی کو مشرک نہیں کہتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ توحید کی تعریف کیا ہے؟ بھائی میں جو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بابوں سے مانگنا جائز ہے، ان کے میں سامنے آپ جھکنا، سے ان کے میں مزاروں نے پہ جانا؟ اچھا یار مزاروں پہ بھی ہم آہستہ آہستہ نا سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز جو آپ مجھ سے سوال کریں گے نا، چاہے صبح کے یہاں پر 2 بج جائیں، 3 بج جائیں، 4 بج جائیں، 5 بج جائیں، جتنے مرضی بج جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب بھی فضل تعالیٰ یہاں سے دے کر جاؤں گا. صرف آپ مجھے بھی یہ بتائیں کہ آپ کو توحید کی تعریف آتی ہے؟ نہیں، آپ توحید کی تعریف پہ جا رہے ہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں یار آپ میں اس چیز کا کوئی اچھا، ایویڈنس آپ دے دیں. توحیدی نہیں ٹھیک ہیں؟ ہے، آپ مجھے توحید کو نہیں نہیں پتا. مانتے؟ آپ توحید نہیں کس چیز مانتے؟ کو؟ کس توحید کو کو. نہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے تو جتنے توحید رسول ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، توحید کا ہم ان کو معنی کیا مانتے ہے؟ ہیں. یار توحید کا معنی بھی تو ہوگا نا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا جی عارف. تو اب میں کہوں جی آپ کا نام تو ہم رکھا ہے، صحیح ہے نا؟ تو جب ہم نے گفتگو کرنی ہے یار مثال کے طور کتنی پر ان آپ کے لوجک متعلق، باتیں ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کر میں دیں کہ آپ کو وہ بابوں کے ثابت کروں سامنے گا. مانگنا میں کہا، تو آپ توحید پہ چلے میں جا نے رہے ہو، کبھی تو کدھر جا رہے ہو. او بھائی آپ ٹھہر ڈائریکٹ تو بتا جاؤ دیں نا کہ یار. یہاں پہ لکھا ہے ختم، حوصلہ دیٹس اٹ، میں کرو گے ایگری کہ کر نہیں؟ لوں گا. حوصلہ کرو گے کہ نہیں؟ اب میں نے سامنے والے بندے کا علم بھی تو دیکھنا نا. اب میں آپ کی آیت پیش کروں، آپ جو ہے وہ آگے سے انکار کر دو. میں آپ کو حدیث پیش نہیں، کروں، میں انکار کیوں آپ کروں گا؟ انکار بتائیں کر دو. کہ جہاں تو پہ اب لکھا مجھے ہو نا کہ بابوں سے مانگنا جائز ہے تو میں سامنے مان لوں والے گا. بندے کا علم بھی تو مجھے دیکھنا ہے نا کہ سامنے والا بندہ میری بات سمجھنے کا متحمل ہے کہ نہیں. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو پوچھا ہے کہ اگر تو آپ کے بقول یہ شرک ہے، آپ اسے شرک سمجھتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو توحید کی تعریف آتی ہوگی، کیونکہ توحید کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے. تو جب آپ کو توحید کی تعریف آتی ہوگی پھر ہی آپ کسی کو مشرک کہو گے یا کسی عمل کو یار مشرک کہو گے. یہی تو ہمارے جی تو ٹپیکل جو آپ بتائیں. مولوی ہیں بیچارے، انہوں نے اچھا عوام کو اسی آپ طرح کو کی باتوں میں آپ کو گھما آتا ہے؟ گھما کے اچھا اچھا اچھا، ٹیپیکل پریشان مولوی، کیا ٹھیک ہوا ہے. ہے. آپ کوئی عالم ہاں. دین ہے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو عالم میرے دین نہیں کہہ رہا، نزدیک تو میں آپ ڈائریکٹ اس جو وقت بات سب سے پوچھ رہا بڑے ہوں جاہل ہیں. کہ آپ مجھے اس میرے چیز کا نزدیک تو جواب دے دیں. آپ دیٹس اٹ، سب یہ سے یہاں بڑے پہ لکھا جاہل ہوا ہے. ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، اور آپ آ کر ان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 8 سال جو ہے وہ علم دین حاصل کیا.
खुद आपकी इल्मी नहीं, हैसियत ये वो है कि छोड़ो आपको एक तौहीद की यार, तारीफ नहीं आती। तालीम उन्होंने तालीम हासिल की है तो आपको डायरेक्ट आप उन्होंने पॉइंट पे आए ना। अच्छा, मैं जो तो पूछ रहा हूँ कि आपको कहाँ पे आपकी लिखा अपनी है, तालीम क्या है? अगर आप मुझे वो बता दें तो मैं उस बात से मैं एग्री करूंगा और आपसे मैं ये बहस ही नहीं बात कर रहा करूंगा। हूँ कि आप ये बताएं कि आपकी अपनी तालीम क्या है। मैं आपको जब दलाइल पेश करूंगा आपने फिर एंड के आखिर यही कहना चाहिए मैं नहीं मानता। तो मैं इसी नहीं, वजह से पूछ मैं रहा हूँ कि मेरी आपकी बात सुनिए, अपनी बात आप क्या मुझे है, कोई आपकी हदीस बता अपनी दें, कितनों। कोई कुरान में लिखा है कहीं पे किसी जगह लिखा है तो वो आप मुझे अच्छा बता दें, अच्छा मैं खुद जाके उसको अच्छा वेरीफाई अच्छा करके फिर बताऊंगा एक कहाँ मिनट ठीक है या नहीं। फैजान भाई जी अगर जी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ इन्हें समझा दूं एक बात, फिर आप बात कर लीजिएगा इनसे। जी जी आप समझाएं। देखिए भाई, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि तौहीद है क्या बेसिकली, ये हमें बताएं। आपको बात समझ नहीं असल में आ रही। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कुरान में तौहीद किस चीज़ को करार दिया गया है, हदीस में तौहीद किस चीज़ को करार दिया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप बात को समझ ही नहीं रहे आप। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, दैट्स इट, मैं एग्री भाई कर जब लूंगा। जिस आपको चीज जो आपको जब टॉपिक खुद नहीं आपने पता रखा कि हुआ है मैं तौहीद क्या उसी के है। बारे में बात करने आया हूँ कि ठीक है जी आप जी जी, कह मैं रहे हैं आपको कि बता रहा हूँ ना, सही है, जब आप आपको उसका खुद नहीं जवाब दे पता। दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे चले लिखा सुन हुआ है, लें, खत्म। सुन लें। देखिए मेरी बात सुने, एक अंडरस्टूड सी बात है। एक बंदा किसी पे फतवा लगाता है और फतवा लगा के कहता है जी मुझे फतवे की वजह नहीं पता लेकिन मैंने फतवा लगा दिया आपके ऊपर, जाए आपने जो करना है मेरा कर लो। ये तो कोई तरीका नहीं होता मेरा भाई। फतवा लगाने के लिए आपके पास से कतई नसे कतई से आपके पास दलाइल होने चाहिए। जब आपको खुद नहीं पता कि तौहीद क्या है, कहाँ पे तौहीद बयान हुई है, तौहीद का मकसद क्या है, तौहीद का मतलब क्या है, अल्लाह ने तौहीद का मयार किस चीज़ को करार दिया है, मयार उलूहियत अल्लाह ने कुरान में किस चीज़ को करार दी है, जब आपको पता ही नहीं है आप आगे आ जाते हैं जी करें जी तौहीद पे बात करें। देखें, भाई बात आपसे ये बाबों पूछ की हो रहे हैं रही है, मैं कुरान से ना पूछ रहा हूँ कि आप 2 मुझे कोई आयतें आयत 10 बता आयतें। दें, कोई चले हदीस बात बता सुने, दें जहाँ पे लिखा हो, चले दैट्स मैं इट, आपको ना मैं जाके चेक कर लूंगा सीधा सही सीधा है। आपको मैं बताता हूँ। आपने कुरान से 10 आयतें पेश करनी है तौहीद पर, ठीक है जी, और 1 या 2 हदीसें पेश कर दें, बस बात खत्म है। मैं आप पेश करें ना इस चीज भाई के को, लिए मैं क्यों पेश आसानी और करूं? कर देते हैं, मैं आपके लिए और आसानी कर देता हूँ। मुझे आप सूरह फातिहा सुना दें, मैं आपको आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ नकद। यार देखो, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप कह रहे हैं ये मैं सुना दो वो आपको सुना कह रहा दो। हूँ कुरान पाक में सबसे पहले सूरह फातिहा है, देखो आप मुझे सूरह ये फातिहा तो फिर सुना दें। आप यही तो बात है ना कि आप मेरे सवालों को फेस नहीं कर रहे और ऊपर से आपको उल्टे मैं सवाल कह कर तो रहे रहा हैं हूँ कि मुझे। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, आप मुझे सूरह फातिहा सुना दें। मैंने उसके अंदर से इस्तेदलाल करना है ना, मैंने उसके अंदर से आपको दलील देनी है। आप सूरह फातिहा पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ें सूरह फातिहा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको 10 आयतें सुना मैं दूंगा। आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने सूरह फातिहा के अंदर से इस्तेदलाल करना है, आपको बताना है। आप सूरह फातिहा पढ़ें जरा। देखो यार, इनकी सूरत यार फातिहा अब में तो हमें कहीं के लिखा, कौन सी सूरत पढ़नी मुझे तो है, समझ नहीं भाई आता कि मैंने ए तो भाई जितना टाइम। ए भाई हमें बताएं कौन सी सूरत पढ़नी है। भाई आप इस तरह डर रहे हैं जैसे हमने आपके दोनों गुर्दे मांग लिए आपसे। नहीं, गुर्दों के मांगने की बात नहीं है, आपके भाई पास कोई पढ़े आयत दलाइल ही पढ़े नहीं है, सूरह आप कोई फातिहा बात पढ़े। ही नहीं कर रहे। यार ये जस्ट लगाइएगा जरा आपने सूरह एक बंदे फातिहा की फोटो लगाइएगा लगाई कासिम हुई भाई। है कि ये कह रहा है कि कासिम भाई भाई मैं जरा लगाता ना या सामने सूरह मौलाना फातिहा सूरह गलत है, लगाइए। आप फातिहा। मुझे उस चीज का डायरेक्ट जवाब दे दें कि मैं यहाँ पे लगाता मैं लिखा हुआ है, आपको अर्ज इधर कर रहा लिखा हूँ हुआ खत्म। आरिफ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और मैं सूरह फातिहा के अंदर से आपको सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि सूरह फातिहा पढ़ के सुनाए ना, मैं आपको उसके अंदर से जवाब देता हूँ। नहीं, जिस आप ही आयत के सुना अंदर से दें, मैंने आप ही इस्तेदलाल सुना करना है ना, देना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नहीं आप ही आती, सुना दे कि यहाँ पे लिखा आपको हुआ नहीं है। आती। नहीं, मुझे नहीं आती, आप सुना दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अल्लाह इलैहि अकबर। राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, ये आप हैं जी, अस्तगफिरुल्लाह तब आपके मुंह से ऐसे निकला, तो मुझे अब आप आती है, सुनाए ना, मुझे आप आती है, बस सुनाएं यही तो मेरे तो मसला है ना कि एक मिनट आप मुझे लोग भाई, बंदे को फेस फैजान नहीं भाई, कर सकते और उल्टे किलर सवाल भाई, करना शुरू कासिम भाई, कर देते हैं। एक मिनट आपने आते ही बौछाड़ कर दी फतवों की जी, मुशरक और बाबों के मांगने वाले और ये और वो, और अपनी औकात आपकी इल्मी ये है कि आपकी मेरी बात सूरह सुने, फातिहा मैंने नहीं कब आती। कहा? मैंने मुशरिक किसी को भी नहीं कहा। आप आपने कहा बाबों से मदद अस्तगफिरुल्लाह ला मांगने हौला वाले। वला कुव्वता। भाई मैंने किसी को सूरह मुशरिक नहीं फातिहा बोला, पढ़ जितने देना लोग बैठे हैं आरिफ सबको पता साहब। है। मैंने चलें किसी को सूरह मुशरिक फातिहा नहीं सुना दें। बोला, ना मैंने किसी को कुछ और बोला, मैंने कहा जनाब कहाँ पे सूरह लिखा हुआ। फातिहा ये पढ़ के सुना दे, सामने लिखी हुई है, पढ़ के सुना दे सूरह फातिहा। यार ये किसको नहीं आती? हम हर रोज नमाज में पढ़ते हैं, क्या चलें आप लोग पढ़ें ही तो सही मुसलमान ना है, दूसरा यार, कोई पढ़ नहीं है? के सुनाएं तो सही ना, पढ़ कोई के सुनाएं तो शैतान सही। रोक रहा है, पढ़ के सुनाए। नहीं, मुझे शैतान नहीं रोक रहा, आप खुद शैतान के इस टाइम
आपको अदा शैतान करवाते रोक रहा है, हुए पढ़ के आप सुनाए, मेरे हम तरकीब आप दे रहे अगर हैं आप आपको। डिबेट करने के लिए आपने तकबीर भाई 4-5 बंदे बैठाए हुए हैं, कोई एक अच्छा बंदा सामने आके जवाब दे दे। आरिफ साहब देखें, ये आप सूरह फातिहा सामने है ना, मैं आपको जहाँ जिस आयत से मैंने इस्तेदलाल करना है ना, मैं आपको वहां पर रोक दूंगा कि ये बस अब यहाँ से मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है? आप सूरह फातिहा पढ़ें, जरा मुझे सुनाएं, ये सामने लिखी हुई है। या ये वही बात होगी मुझे अच्छा ये सिर्फ आप लोगों को ही आती है, आप ही यार मुसलमान हैं, कुरान ये पाक हम मैं लोग सामने आपसे नमाज में पढ़ने का पढ़ते कह रहा हैं, हूँ, आप ये कुरान तो नहीं पढ़ बंदे रहे। को जुबानी याद होती है, ये मैं तो 2 तो साल का सुनाए 3 ना, साल का तो बच्चा है चलें उसको भी आती सुनाए है। तो सही, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? सुनाए तो सही यार, सूरह फातिहा सुनाए तो सही। अच्छा आपने सवाल का जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ अपनी आपके पहले जिद सवाल के और वो जवाब भाई के ऊपर से मतलब कह मैं रहे कह हैं रहा हूँ कि आपने आते ही मुशरिक और ये आपने तो अच्छा मानना फिर है चले ही चले कोई, या मान तो लिया आपने 10 नहीं बंदे कहा, हम बैठे हुए माजरत किसी करते हैं एक में आपने भी नहीं कहा। हिम्मत नहीं है कि वो मेरे चलें सवाल का चलें जवाब चलें, दे सके। अच्छा हम माजरत करते हैं कि आपने नहीं कहा, फिर सूरह फातिहा पढ़ के सुनाने, बस छोटा सा मुतालबा है। ये पढ़े क्या लिखा हुआ था। मैं अच्छा ये सिर्फ आपको ही आती है? हाँ हमें आती नहीं है, हम यार मैं मुसलमान ही नहीं आपको हैं। कह रहा हूँ सूरह फातिहा पढ़ दें आप, फिर हमें वो आगे से कहानियां सुना रहे हैं, आप सूरह फातिहा पढ़े तो सही। आपने हमारे चलो आप जी कर दो। भाई आपसे मैंने जो चीज़ पूछी आप उसका यार जवाब मैं दें, आप आपको मुझसे कह क्या? रहा हूँ कि मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं आपको इसके अंदर से बताऊंगा, इस्तेदलाल करूंगा, आप मुझे सीधा सूरह फातिहा पढ़ना शुरू तो करें, जिस आयत से मैंने इस्तेदलाल करना है मैं वहां पर आपको रोक दूंगा, फिर मैं आपको उसका तर्जुमा बताऊंगा, आप पढ़ें तो सही सूरह फातिहा। जी आरफ साहब पढ़े सूरह फातिहा। यार नहीं तो नेक्स्ट कॉलर को ले लें, उन्होंने तो बोलना नहीं। नहीं वो पढ़ेंगे भी, पढ़ के सुनाएंगे। ये क्या नाम है, इंजीनियर साहब से इन्होंने सीखी है, 1.5 घंटे में 2 साल का कोर्स किया किरात का। नहीं मैंने पहले ही क्या कहा है कि मैं इंजीनियर अच्छा साहब चलें की चलें वो चलें बात नहीं ठीक है, है, आप सूरह मुझे कॉल फातिहा तो करें, पढ़, आपने फिर अब्बू पे मैं गए हैं तो आपसे तब मैं बता जाके रहा हूँ हाई सूरह पर हूँ, वैसे फातिहा तो मैं पढ़ सुन लें, रहा था आपकी सूरह बात। फातिहा तो आपके पढ़ें पास जनाब। दलाइल ही कोई नहीं है, आप लोग अन्नों की तरह यार सूरह तुम ये करो, फातिहा तो तुम पढ़ ये लें, सुनाओ, तुम तौहीद की सुनाओ। भाई मैं ये तुमसे जो सामने चीज़ सूरह पूछ रहा हूँ फातिहा लगी कि है, ये सूरह चीज़ है फातिहा उसका मुझे कुरान बता पाक दे कह रहा खत्म। हूँ, कुरान पाक कह रहा हूँ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो यार, मैं कोई आपको अपनी किताब तो नहीं पढ़ाने लगा, या जो मैंने किताबें लिखी हैं मैं वो तो नहीं पढ़ा रहा, कुरान अल्लाह की किताब कह रहा हूँ, पढ़ के सुना दो मुझे, आप वो भी नहीं पढ़ रहे। भाई देखो मेरे सवाल का जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलो बेशक जी आप साहब, में हिम्मत है मैं तो आप ठीक है, नहीं तो हटा दें कॉल से, मुझे कोई मसला नहीं। वाला हूँ, आप मुझे एक सूरह फातिहा पढ़ें तो सही, मैं इसके अंदर से दलील दूंगा आपको, मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा आप उस खुद आयत ही का। पढ़ के दलील दे दें। अच्छा आपको आपको क्या नहीं आती लगता सूरह है कि फातिहा पढ़नी? हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम जो नमाज 5 टाइम की पढ़ते जी हैं बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल कमजोर है, है मैं वो बिल्कुल हमें मानता नहीं हूँ आती? आपका ईमान कमजोर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। अच्छा सुन लिया आपका आपने ईमान सवाल का ठीक है, बस जवाब, यानी कि अब ये आपने उस सूरह बात पे फातिहा सुन यह ली। करना है कि जवाब नहीं देना और बस किसी को, बस चलें वैसे अब ही है सूरह फिर क्यों फातिहा पढ़ें आपने। तो सही ना, मैं आपको जवाब दूँ। यार नीचे लाइन लगी है, फैजान भाई इन भाई से इजाजत ले लें, किसी और भाई को उठा लें यार। चलें ठीक है जी आरिफ साहब, अगर आप चल जाए, जाने देने कोई मसला नहीं, आने दे अगले बंदे को। ये मैं उठाता हूँ जी, उस्ताद जी मैं उठाता हूँ, आपने उठाया, मैं उठाता हूँ। ये देखें जी आ गए हैं जनाब, एक बोल रहे थे पहले भी ऊपर आए थे, मैं तो इनको मैं नहीं उतारा था। हाँ जी एम के एफ आर्मी साहब, एम एफ के आर्मी साहब जी, वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक भाई है मैंने ना बस इतनी बात करनी थी कि ये जो दोस्त लोग आते हैं, मतलब इनको तो दोस्त कहना भी नहीं चाहिए, ये तो हमारे मतलब बड़े, हमारा तो बस नहीं चलता। ये जो कहते हैं जी बाबे शाही कोई नहीं, ये इनका कोई हल कोई भी नहीं है। ओ भाई हम हाल निकाल दे हैं ना इनका, गुफ्तगू से ही हल है ना, मारना तो नहीं ना किसी को, मेरा भाई समझाना ही है ना वो हमने ना इनको, एक बंदा मैं ना काफ़ी बाकी समझ के बेहतर है ना, मैं ना समझे काफ़ी मर्जी दिनों इनकी। से एक बंदे की बराड़ देख रहा हूँ, वो एक देहात में जाके ना कहीं किसी गांव में वो बना रहा है। तो कल मैंने उसकी एक वीडियो देखी है, अभी मैंने उसको आज फॉलो भी किया है क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी इससे एक दफ़ा बात हो जाए। वो ना जनाब वो यार गल कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ।
असजद साहब ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ਾਨ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦੇ ਦੇ ਟਰਨੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा चलो चलो छोड़ो गल्लां सूरह फातिहा पढ़ के सुना दियो मैं ਤੁਸੀਂ जवाब दूं। ਹਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਏ मैं अर्ज कर रहा कि तुहाने पाक दी आयत पढ़ के सुना दियो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨੈਲੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਾਈਕ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਊਟ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆ ਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਵਹਾਨੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜ਼ਰਾ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ये ਵਿੱਚ यार ਕੁਰਾਨ माइक ਦੀ म्यूट ਸਪੈਲਿੰਗ ना ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੀ। करो अजाब लक भाई। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। अच्छा वो करने या ना ना माइक म्यूट ना करो ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚੋਰੀ ਪੜੀ। अच्छा मादरत जी गोंदल साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਓ ਓਪਨ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇਤਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਾਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਦ ਸੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਕਿਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਸਰ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਅਸਜਦ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਸਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੇ ਚਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਵਾਬ ਰਹੀ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਲਾ ਲਿਓ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਅੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੋਜੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ भाई जी ने एंट्री लगा लो सर कि कद ना लगाई दीजिए अपना मोबाइल कद ना अटैच किया हुआ फिर जिनकी आवाज सही है ना रियो नीचे उतार दिया करें फिर दूसरा ले लिया करें वैसे भी लाइन लगी है फिलहाल। जी अच्छा किधर गया जे किधर गया गुजर किधर गया बशीर गुजर। हाँ जी फैजान भाई बशीर गुजर उत्ते आ तो आप तरसते हैं कि कोई आए कादियानी या कोई मरज़ई है अभी लाइन लगी है। और नहीं हम नहीं तरसते भाई लो जी हमजा भाई ने ਇਹ ਡਾਵੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ला लो मिनू थले ला लो जी थले ये ला लो। हमारे साथ ये हमारे साथ मुजाहिद हुसैन साहब आए हैं जी मुजाहिद हुसैन साहब जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी मुजाहिद साहब आया सूरह फातिहा आपके सामने लगी है जरा ये पढ़ के सुना देंगे हमें आज। सर मैं अनपढ़ हूँ सर। अच्छा सही तो आप किस बारे में गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए हैं? नहीं सर हम अब सुनने के लिए आए हैं। चलें जज़ाकल्लाह जी। चलें ये ना एक नीचे बलोची साहब बैठे हैं इनको लेते हैं यार बलोची साहब को लीजिएगा। हाँ वो पहले भी चले गए थे तो अब वापस आए हैं। जी ले लिया उसको मैंने ऊपर।
ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ रिमोट कंट्रोल हाथ से रखना, ठीक है? अच्छा, किस मौजू पे बात हो रही थी फिजान में इनके साथ, अलम बलोची भाई के साथ? इनसे तो पहले तो हीट्स के मुतालिक हमारी गुफ्तगू हुई थी। हाँ हाँ, बाकी ये 28-12 पे कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे, इनका दिल नहीं नहीं, करता था। 28-12 में बाद में करते हैं बात, अब पहले इनसे ना तौहीद पे करते हैं बात। जी जी, वो तौहीद पे ही गुफ्तगू है ना, क्यों जी, तो ये अलम बलोची साहब करेंगे तौहीद पे बात, गुफ्तगू करेंगे? जी जी, मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ यार, वो आपके हम्म, बुजुर्गों से सारे, जी ठीक जी है, जी जी। एहतराम के साथ, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मिर्ज़ा के हम्म बारे में जो है ना इतनी बड़ी क्लेम करते हैं, ठीक है, हम्म जूनियर कादियानी, जूनियर मिर्ज़ा, हम्म हम्म तो मैं आपसे यही क्लेम, मेरा आपसे और कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन बुजुर्गों के बारे में बता रहे होते उनके बारे हम्म। में आप अपनी भी तो राय देना, हमें पता चले ना उनकी अच्छी बातें भी ना, तो मेरा अच्छा कोई अलम इख्तलाफ बलोची नहीं भाई, है एक सीधी असूल है, हाँ एक असूल है कि जब भी कोई इंसान किसी बंदे पे एतराज करता है ना, जब भी कोई एतराज करता है, तो उस एतराज के पीछे ना कोई सॉलिड रीजन या कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो कि अनडिनाइबल हो। ऐसा कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई दलील ऐसी होनी चाहिए कि जिसको रद्द ना कर सके अगला बंदा। उस दलील की जी बुनियाद के ऊपर आप किसी बंदे के ऊपर ना एतराज करते हैं। लेकिन अगर एतराज बाय एतराज हो ना, यानी कि कोई दलील ना हो, तो वो उस बंदे का एतराज बातिल होता है, मरदूद होता है। इस असूल का आपको पता है या नहीं पता? जी जी तो आपने जो भी एतराज करना है ना, किसी के ऊपर भी, किसी बाबे पे करना है, किसी करामत पे करना है, आपने वो कुरान और हदीस से उसका हुक्म बयान करना है। अगर आप कर सकते हैं तो हम ये मौजू शुरू कर लेते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इस मौजू को छोड़ दें। नहीं, मैं कह मैं रहा हूँ आपको दो कुरान, ऑप्शन दे रहा हूँ, दो कुरान ऑप्शन दे रहा हूँ, मजबूत, जी जी, मैं मैं कह रहा बता हूँ रहा कुरान हूँ, दो को जिक्र ऑप्शन ही दे नहीं। रहा हूँ आपको मैं, या तो आप तौहीद पे बात कर लें जी या बाबों पे बात कर लें। अगर बाबों पे बात करनी है तो जिस बाबे पे भी एतराज उठाएंगे ना आप, जी जी, उसकी दलील आपके पास सॉलिड होनी चाहिए, उस एतराज के ऊपर कुरान और हदीस से हुक्म वारिद करना है आपने, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास किताबें हैं, इन किताबों हाँ के बस हवाले ठीक, से कौन सी। बस ठीक हो गया, ये तो जबरदस्त काम हो गया। कासिम भाई तस्वीर जरा चेंज कर दीजिएगा प्लीज, और ऊपर से को बड़ा कर दीजिए। सर ये मेरे पास पहला तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, नौज़ुबिल्ला, हम्म हम्म सही है, चिश्ती रसूलुल्लाह, मैं आपको इसके हम्म। किताब का हवाला लगा देता हूँ, आप इसको क्या समझते हैं? कुफर समझता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, शिबली ये रसूलुल्लाह। कितनी की दफा ये बात आपको बतानी है, यानी कि कोई 10 का 1000 दफा ये बात बतानी है आपको? सर पहली मर्तबा मैंने आपसे पूछी और पहली मर्तबा आपने कहा है, मेरा मैंने भाई, कहा बहुत अब यानी ज़बरदस्त। हर मर्जई को अलग अलग पकड़ के घर जाके बता के आना है? नहीं ना, तो आप हक पर है ना, हक पर बंदा जो है ना अल्लाह मेरा की भाई, तरफ, ये अल्लाह के लिए हक आपने पे मिर्जा जो है ना चल इंजीनियर की रहा है। वीडियो नहीं देखी वो वाली, जिसके अंदर उसने ये कहा है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने फतवा दिया है इसके खिलाफ, इसको कुफर माना है, कुफर कहा है, तो वो फतवा भी आ गया, उसने वीडियो भी बना दी, उसका क्रेडिट भी ले लिया और उसका अस्सलाम, क्रेडिट अपने शागिर्दों को भी दे दिया। आप अब मुफ्ती मुनीब दोबारा करवाएं। फिर आप हर जिधर भी जाते हैं, जहां जी भी जी, आप जाते हैं, ये मुनाफकत नहीं है ये? नहीं नहीं सर, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इख्तलाफ कर दिया मतलब उन चीज़ों से। और मेरा भाई, मेरे जवाब नहीं आपने सुना। भाई हमारे बड़े कौन है? मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, मिर्जा साहब कहते हैं, ऐसी बात है। नहीं, आप अपना मिर्जा को छोड़ो, आप अपना क्या कहते हैं, भाई आपका मुझे कौन है? बात तो, मुझे जवाब तो देने देना, हाँ जी या ना जवाब दे दे। जी, मिर्जा साहब ऐसे बरेलवियों के बड़े कौन है? मुफ्ती मुफ्ती मुनीब मुनीबर रहमान साहब, जी ठीक है। मिर्जा साहब 8 साल से तकाजा कर रहे थे कि भाई नहीं, छोटे से कहने से नहीं होगा, इनका बड़ा जो है ना मुफ्ती मुनीबर रहमान, वो कहे। याद है आपको? जी जी, अच्छा, 2023 दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का फतवा आ गया कि कलमा पढ़ना पढ़ाना ये कुफर है, ये ठीक है जी। इसके बावजूद भी जो मर्जी आता है ना, वो आके चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात करता है, इसकी क्या वजह? नहीं, वो तो कुफर है, उन्होंने कुफर किया, उनके कुफर की वजह हाँ से आप उनको क्या कहते हैं, कादियानियों से बदतर कह रहे हैं, कादियानियों से बेहतर कह रहे हैं? भाई, आपने पूछा चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मैंने आपको कहा कुफर है। लेकिन अब आप आगे जो डिटेल आप पूछना चाह रहे हैं, उसका जवाब भी उन्होंने उसी फतवे में दिया है। 7 सफ़ों का फतवा है वो वाला, 7 पेजेस, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो किताबें हैं
یہ ان جی بزرگان دین کی طرف منسوب ہے، یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ سر، تو یہی بات انجینئر بھی کب سے کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، مگر پہلے کسی کو کیوں کہ نظر کیوں نہیں آئی؟ آپ جب سے جھوٹ بول رہے انجینئر ہیں نے کہا یار، تب سے کیوں نظر آپ آئی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، اچھا جی، مرزا یہ دیکھیں انجینئر اب، کے کہنے کی یہ بات آپ کو دیکھیں پتہ چلا کہ نا یہ ان کے مرزا اوپر انجینئر منسوب ہے۔ مرزا انجینئر کا دادا ابو کے دادا ابو اور ان کے بھی آگے دادا ابو وہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں ایک منٹ میں ایک حوالہ لگانے لگا ہوں۔ مرزا صاحب کے دادا ابو کے دادا ابو اور ان کے بھی آگے دادا ابو وہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب کا ہمارے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں نکال لیتا ہوں حوالہ، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ سر، وہ میں سمجھ گیا، تو پھر پرنٹ ہو نہیں رہی ہے ایک جو۔ منٹ، نہیں ایک منٹ، یہ اب آپ کا تیسرا اعتراض آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ایک اعتراض، پھر دوسرا اعتراض، اب تیسرا اعتراض آ گیا آپ کا۔ یہ کام آپ لوگوں نے مرزا انجینئر سے سیکھا ہے۔ نہیں، اعتراض نہیں، جو میرے نبی کی سر اچھا جی، امت یہ کا دیکھیں، نا، یہ دیکھیں، یہ پڑھیں ذرا جب وہ پڑھ کے بتا رہے سنیں، ہیں اس پہ پڑھ اعتراض کے، تو آتا ہے۔ یہ ذرا پڑھ کے جی پڑھیے جی، گا یہ ذرا، میں نے پڑھا ہوا ہے سر۔ محترم پڑھیے گا ذرا۔ آپ پڑھیں سر، آپ پڑھیں۔ نہیں آپ پڑھیں، یار میں آہستہ سر بول، درد یار کر رہا، آہستہ آپ پڑھیں بول، ذرا۔ آہستہ بول میرے بھائی، آہستہ بول۔ دودھلا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، میری آواز تیز آ رہی ہے، معذرت۔ جی آپ پڑھیے ذرا۔ سر، یہ دھندلا لکھا ہوا ہے، اور میں دبلا کھانا لکھا کھا ہوا رہا ہوں، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے میرے۔ جی ہے، آپ پڑھیں، میں دیکھ لوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ دلیل العارفین، فؤاد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، ٹھیک ہے جی، بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی، وہاں تو صریح کذب کی راہ لی، یعنی کہ جہاں پہ یہ حوالہ لکھا ہے نا، وہ وہاں پہ اس کی صراحت نہیں کی جس بندے نے سوال پوچھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ جھوٹ بولا، اس بندے نے صریح کذب کی راہ لی۔ اولاً تو ایک منٹ، اگر اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا اعتبار ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جی کسی جی نے خیانتاً ان کی طرف منسوب کر کے چھاپ دی، جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ان بزرگان دین کی طرف۔ یہ اعلیٰ حضرت، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، کر کے چھاپ دی۔ جی جی، صحیح ہے، میں نے پڑھ لیا سر۔ اسکرین شاٹ لے لینا، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ہو گیا اسکرین شاٹ۔ اور یہ کتنے سال پہلے فتویٰ ہے یہ والا؟ 15 سال پہلے دیا گیا فتویٰ، 150 15 سال پہلے؟ 150 ہاں 150 سال پہلے، اچھا جی، اس اعلیٰ سے بھی حضرت۔ پرانا فتویٰ دکھاؤں، اس سے بھی پرانا فتویٰ دکھاؤں آپ کو؟ یہ تو آپ نے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو۔ اس سے بھی پرانا ایک فتویٰ دکھاتا ہوں آپ کو، وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، زیادہ میں پرانا نہیں ہے وہ۔ ایک منٹ 2013 کی آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں۔ بھائی ٹھہر جائے، زیادہ پرانا فتویٰ نہیں ہے، بس یہ پڑھیے گا ذرا، کیا لکھا ہوا ہے، کتاب کون سی ہے، کتاب کا کیا نام ہے؟ ابو المجید شیخ محدث دہلوی، نہیں، کتاب اوپر نام 400 کیا سال لکھا ہے کتاب کا؟ اخبار الخیار، اخبار الاخیار، اردو۔ یہ مرزا صاحب کے چینل کے اوپر، مرزا صاحب کا جو چینل ہے نا ahlsunatpak.com، وہاں پہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، مشہور معروف۔ لیکن پڑھی ہوئی ہے، پڑھی نہیں ہوئی، مرزا صاحب نے صرف پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اچھا اب یہ پڑھیں ذرا نیچے کیا لکھا ہوا۔ یار آپ یا تو کھانا کھا لو یا بات کر لو۔ کے گاؤں کا نام لیا ہے جہاں خواجہ عثمان رہا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ یہ عبارت ان کی نہیں ہے، ان کی ملفوظات کے کئی نسخے ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، جن میں اکثر باتیں ایسی مندرج ہے جو جوانی الواقع ان کی نہیں، جو کیا لکھا ہے، درجہ ہے جو ان کی نہیں جو انہی الوا ان کی نہیں ہے،
इसके बाद फरमाया कि शेख निज़ाम उद्दीन फरमाते लिखा है थे कि जो फिल वाक़े इनकी नहीं है। जी मैं दुरुस्त कर रहा हूँ उसको। फरमाते थे ये किताब नहीं लिखी इस शेख इस्लाम फरमाते हैं कि शेख इस्लाम कब्ज़ तकदीन और ख्वाजगा चिश्त जिसे लोग ने कोई किताब नहीं तसन्नुफ़ फरमाई। अच्छा सर, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात से ये 400 साल पहले लिखी गई किताब है। अब क्या लिखा है इसके 2013 अंदर? की मैं आपको कह रहा हूँ, मैं क्या लिखा है इसके 2013 की अंदर? बुक में लिखी हुई। नहीं, लिखा गया है इसके अंदर। इसमें लिखा गया है कि जो किताब है ये इबारत इनमें से मलफूजात के नुस्खे नहीं, हमारे यहाँ यहाँ पे भी मौजूद है यहाँ पे जिनमें कुछ अक्सर बुजुर्गों के बातें नाम लिखे ऐसी हैं ना। मंदरजे। हाँ नहीं, ये जो लिखा है ना शेखुल इस्लाम, क्या लिखा है? शेख निज़ामुद्दीन फरमाते थे कि नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, कोई शेखुल किताब इस्लाम नहीं लिखी। निजामुद्दीन और फरमाते थे शेखुल कि मैंने कोई इस्लाम, किताब नहीं लिखी। नहीं सुन लेना, पढ़ भी नहीं ना, आप सही है। लिखा है शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन और शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन। अब ये शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन कौन है? शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन मैंने इसका सुना है। ये वही किताब है जो मिर्जा साहब 8 साल से 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को कि ये देखें जी इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये देखें जी इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये देखें जी इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये वही किताब है, वो इन्हीं के नाम से मंसूब है किताब, ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी के नाम से। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ठीक वो है, देखें, अब ये शेख ये एक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पता कौन है? कौन है ये? जी कौन है ये? कौन है आप बताएं, मैंने सुना है उनके बारे में बहुत। अच्छा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो हैं, बरे सगीर के अंदर हदीस की जो सनद है ना, वो जी इन्हीं से चलती है। बरे सगीर के अंदर हदीस को लेके आने वाले, हदीस का इल्म लेके आने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं। इनकी सनद से आगे सनद, जिसकी भी सनद है ना आगे, इन्हीं से चलती है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे देवबंदी है, चाहे बरेलवी है, इन्हीं से उसकी सनद आगे चलती है। अरे भाई, मैं आपकी बात वल्लाह मैं आपकी बात मान गया। ये आप जो है ना क्या इनकी मानिए आप? ज़बान में, हाँ, मैंने कहा इन्होंने नहीं लिखी, इनकी तरफ मंसूब की गई है, वो बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कौन सा मुफ्ती है जो वहाँ मुनाजरा करने गए थे और टीवी में बैठ के कह रहे थे कि भाई उस वक्त जो है ना वो एक अलग सी कैफियत में थे। उन्होंने कहा पढ़ो चिश्ती भाई रसूल उसके इत्तेफाक अंदर करते थे। उन्होंने आपको आप जो कह रहे हो कि इबारत किताबों लिखी है ना, इबारत जो लिखी है ना मेरा भाई, अकल से काम लिया करें। जब भी आप किसी बंदे को जवाब देते हैं ना, तो आप सबसे पहले नंबर पे उसको उस इबारत में से जवाब देते हैं, इबारत में से जवाब देते हैं। उसके बाद आप उसको बताते हैं कि भाई ये किताब ही बोगस है। अब उस इबारत के अंदर जो लिखा हुआ है ना कि वो एक खास कैफियत में थे, अब जब जी खास कैफियत में इंसान होता है ना, जिसको हालत जज्ब भी कहते हैं, हालत साहब भी कहते हैं, ठीक है जी, तो उस हालत के अंदर जो है अगर किसी इंसान की जुबान से कोई कलमा इस तरह का जारी होता है ना, तो उसके ऊपर फतवा नहीं लगता। बिल्कुल। हाँ, तो वो मतलब मैं आपको उन्होंने ये कहा, कहना चाह वो रहा जो हूँ। प्रोग्राम है ना, वो जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब प्रोग्राम के अंदर जो बात कर रहे हैं ना, सामने कारी खलीलुर रहमान बैठे हुए हैं, वो उन्होंने काट के, मिर्जा इंजीनियर के जो छोकरे हैं ना, उन्होंने काट के तो उसको अपलोड किया है। अगर आप वो पूरा बयान देखना चाहते हैं ना, तो मेरी ही आईडी के ऊपर ना तकरीबन नीचे को 50-60 वीडियोस नीचे जाएंगे ना, तो वहां पे वो वीडियो पड़ी है, मुकम्मल वीडियो पड़ी है। उसके अंदर उन्होंने इन किताबों के हवाले दिए हैं, अखबारुल खयार का भी हवाला दिया है, फतावा रजविया का भी हवाला दिया है, शरीफुल हक अमजदी जो शारे बुखारी हैं उनका भी हवाला दिया है, नहीं इन मतलब सब अब के हवाले दफा दिए नहीं हैं। कर रहे इनका। हम क्या लोगों ने जी? आधी क्लिप सुनी है। हाँ, आप लोगों ने पूरी क्लिप नहीं सुनी। नहीं सर, उन्होंने वहां पे 2 जवाब सर मैं दिए। क्या एक कह रहा जवाब हूँ, ये दिया है, सर मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने मतलब आधी क्लिप सुनी है इसकी। हाँ आधी सुनी है आपने मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ वो जो प्रोग्राम की हम लोगों ने आधी वो क्लिप सुनी है जिसमें वो दिफा कर रहे वो थे। हाँ, आपने उसके कट पीस सुना है, आपने जिस छोकरे ने काटा है ना, वो क्लिप काटा हुआ किसी ने। हम्म
तो सर कट पीस सुनकर देखो कितना कितना बड़ा इसमें जो है ना नुकसान होता है। अब इसी भाई तरह मिर्जा आपके साहब, छोकरे जो है ना मिर्जा इंजीनियर साहब कट की पीस लगा लेते मिर्जा हैं। साहब की देखें, मैं आपको बताता हूँ हमारा असलूब है। हम क्या करते हैं, हम मिर्जा इंजीनियर का जिस जगह से क्लिप काटते हैं ना, हमारे पास उसका पूरा हवाला मौजूद होता है। आप मेरे से जो मर्जी मिर्जा की वीडियो, जो सी मर्जी वीडियो आप मुझे कहेंगे ना, मैं आपको अभी वो चला के दूंगा, और जहां से आप कहेंगे मैं वहीं से चलाऊंगा। देखें, यही तो अगर कह कोई रहे हैं, बंदा हमें भी एक यही जुमला देखने अपनी को जुबान लगा से निकालता है, सुने मेरी बात सुने, जैसे मिर्जा साहब ने कहा हजरत जी अम्मा आयशा को उसने जालिमा कहा, बागिया कहा, खारजिया कहा, ठीक है जी, और बिदती कहा, बिदती भी कहा उसने। अभी एक नई वीडियो सामने आई है, उसने हजरत अम्मा आयशा को बिदती कहा उसने, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये जो उसकी जुबान से जुमले निकले हैं, अब ये सुनने के लिए क्या मुझे 3 घंटे की वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी उसकी? बिल्कुल सुननी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात की है किसी साहब, ठीक है, उम्मुल आयशा के बारे में इतनी बड़ी बात की, आपको सुननी पड़ेगी मेरे भाई। और कोई अच्छा कितना भी अच्छा, वो पूरी नहीं वीडियो जाहिल मसलन यार, पूरी आप वीडियो सुन गलत ली हो हमने, सर। पूरी सुन ली, और वो उम्मुल पूरी आयशा वीडियो के सुन बारे में ली, इतनी आपके गलत कहने बात पे की ना, और हम उसको सुनने आपके वाले कहने पे ना, सुन लें, आपके कहने पे पूरी वीडियो सुन ली, उससे कौन क्या से होगा, आपने की होगी? ये वाले मौला अली जुमले सुन लेना, सुन तो लें, और भाई सुन तो लें। पूरी वीडियो सुनने के बाद ये जो जुमले उसने हजरत अम्मा आयशा के बारे में बोले हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये जुमले इसके अंदर से निकल जाएंगे वीडियो के अंदर से बार बार, ये पूरी आप सुनने उसको की वजह से। आप पूरी सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने उनके कहा है, इस सहाबी ने इस तरह इनको भाई कहा है, उस मुझे सहाबी ये ने उस तरह इनको कहा है, बताएं, इस तरह होता है। मेरी बात सुने, मुझे आप किसी एक सहाबी से दिखा दें, किसी एक मुहद्दिस से दिखा दें, किसी एक मुजतहिद से दिखा दें कि किसी ने हजरत अम्मा आयशा को खारजिया कहा हो, बागिया कहा हो, बिदती कहा हो, एक से दिखा दें। मैंने आपको अभी सर एक मिसाल दी है, अभी हमारा मौजू वो नहीं है, अभी हमारा मौजू वो नहीं है। मौजू हमारा ये है कि देखें, एक बंदा जब मुकम्मल बात कर रहा होता है ना, मुकम्मल बात कर रहा होता है, और वो वजाहत दे रहा होता है, अगर आप उसकी वजाहत आधी काट के पेश करेंगे तो ये खयानत है। लेकिन बिल्कुल जब वो अपना, एक मिनट बात सुन लें, जब वो बंदा अपनी एक, यानी कि पूरी क्लैरिफिकेशन आ गई उसके जुमले के अंदर पूरी, मिसाल के तौर पे जैसे उसने कहा कि कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। अब ये उसका एक जामे जुमला आ गया, बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया आ गया। फिर उसने एक जगह पे कहा कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर हैं क्योंकि आपके माँ बाप मुसलमान हैं। अगर आपके माँ बाप मुसलमान ना होते, कादियानी होते, तो आज कादियानी मुसलमान होते और आप काफिर होते। यानी कि वो कादियानियों के काफिर होने की वजह क्या बता रहा है, क्योंकि आप कादियानियों के घर पैदा नहीं हुए, इस वजह से कादियानी काफिर है। नहीं, वो ये पूरी उसकी क्लिप एक, भाईजान क्लिप बात पूरी सुन लिया करें, पूरी बात सुन लिया करें, हमने उसके भाईजान पूरे क्लिप हम सुनते हैं, बेफिक्र हैं आप, पूरे क्लिप उसके सुनते हैं हम। अगर हम उसके पूरे क्लिप नहीं सुनते तो फिर मुझे बताएं कि वो क्यों जवाबात रिकॉर्ड करवाता है, फिर उन क्लिप्स के अगेंस्ट जवाबात क्यों रिकॉर्ड करवाता है? वो जो कादियानी का अब मामला इस है ना, बंदे से, कादियानी के मामले में उन्होंने कहा, एक आप मिनट मेरी मेरी सुन बात ले। सुने, मेरी बात सुने जरा। इसका जो स्टूडेंट है डॉक्टर नसीर जो है, वो जी इसके पास गया पॉडकास्ट करने के लिए, उसने कहा शायद आपके इलाके से ताल्लुक है उसका, सिंध से ही। वो गया, उसने जाके कहा कि मिर्जा इंजीनियर साहब, आप कहते हैं कि कादियानियों का ज़ाय वुज़ू चमक रहे होंगे, तो आप कादियानी है क्या? तो आगे से क्या कहता है, कहता वो जिस कुत्ते ने कहा, या पता नहीं क्या लफ्ज इस तरह करके उसने बोला, मैं भूल गया लफ्ज, कहता है जिस कुत्ते ने ये क्लिप काटा है ना, उसने भी ये पूरा नहीं सुना। अब जरा गौर करिएगा जरा जुमलों के ऊपर, जिस कुत्ते ने क्लिप काटा है ना, उसने भी पूरा नहीं सुना। अच्छा जी, उसने कहा मिर्जा साहब आप उस क्लिप को छोड़ दें, अब आप बता दें आपने क्या कहा था। अब इस क्लिप के अंदर उस बंदे ने सेम वही बात दोबारा दोहराई है। तो क्लिप काटा, कहां पे काटा क्लिप? जब तुमने फिर वही बात की है कि कादियानियों का ज़ाहिर वुज़ू चमक रहे होंगे, और वो इसलिए चमक रहे होंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी तावील की गलती सही है या गलत है। कह रहा है उनका ज़ाहिर वुज़ू चमक रहे होंगे, कह रहा है पुलिस सिरात पे जाके पता चलेगा कि कौन मुनाफिक है कौन मुसलमान है। अभी नहीं हमें पता कि कादियानी मुनाफिक है या मुसलमान है, अभी नहीं हम फैसला कर सकते कि वो काफिर हैं या नहीं है काफिर। ये जुमला उसका मुकम्मल आ गया, नहीं, फतवा ये नहीं दे मुकम्मल सकते। उसकी, अब उनका मुकम्मल, ये देखें एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट आ गई उनकी। अब ये स्टेटमेंट सुनने के लिए
मैं पागल हूँ मैं 3 घंटे की वीडियो पूरी चलाऊं यहाँ पे बैठ के? नहीं नहीं, आप 3 घंटे की वीडियो ना चलाएं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कादियानी के मुतालिक। आप पहली बात मुझे तो ये ना, बताएं उन्होंने मेरा कहा कि भाई, अगर कादियानी को मेरे खत्म भाई नबूत का बात कभी सुने, मतलब अभी समझ हम नहीं वापस आ आएगा जाते हैं, अभी हम वापस आ तो वो जाते हैं, कादियानी ही रहेगा। अभी हम वापस ठीक आ है, जाते उन्होंने हैं उसके इस तरफ, मतलब कॉन्सेप्ट में सुने कहा जरा, सुने जरा, अभी हम वापस आ जाते हैं इस तरफ, ये जो है ना चिश्ती रसूल अल्लाह, क्योंकि आपने मौजू ये शुरू किया था। अच्छा, अब आपको हमने दिखा दिया 150 सर साल पहले, मैं आपको 400 ये साल बताएं। पहले, एक मिनट जरा सुन लें 150 साल पहले, 400 साल पहले, 40 साल पहले, अभी 2023 दिसंबर के अंदर, ये नीचे डेट लिखी हुई है 2023 18 दिसंबर, नजर आ रही है डेट आपको? कहाँ 2018 दिसंबर जी आ रही है। ठीक है जी। अब जब इतने ज्यादा लोगों के आपके पास दलाइल आ गए कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह जिस किताब में लिखा है वो बोगस किताब है, जाली किताब है, आप कहते हैं नहीं जी उनके ऊपर फतवा लगाओ। अब आप मुझे बताएं कि ये आपकी किनके हट ऊपर दर्मी लगाऊं? और जहालत है कि नहीं? जिन बुजुर्गान दीन की तरफ ये किताब मंसूब है, आप कहते हैं कि उनके ऊपर फतवा लगाओ। भाई कोई बंदा पागल है कि ये किताब ही जाली है, बोगस किताब है, आप कह रहे हैं इस किताब की बुनियाद पे उनके ऊपर फतवा लगाओ कुफर का? ये यानी कि ये कौन सा दीन इस्लाम है? ये बताएं मुझे। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट मेरी भी सुन ले। अभी आपने इतनी लंबी बात की ना, मेरी भी एक बात सुन ले। फतवा क्यों लगाने का कहता है सर? आपके जितने भी छोटे मौलवी है ना, वो मेंबरों पे बैठ के जो है ना फिर ये आप कहानी छोटे शरीफ मौलवी में सुना भी आ रहे गए होते, आप। ठीक है अच्छा, फिर आप छोटे मौलवी में भी आ गए। सर। वो वजह यही है सर, और मेरा फतवा भाई लगाने की जब वजह यही है, मिर्जा वो इंजीनियर क्लियर कहता है है। छोटों को कहने से कुछ नहीं होता, आपके मिर्जा सर साहब छोटों कहते को हैं कहने से छोटों कुछ को नहीं होगा, कहने मगर से छोटों कुछ को नहीं कहने होता। से आपको और मेरे को और आपको तकलीफ भाई होती है जब मेरे भाई। आपके मिर्जा साहब खुद आपको और कह मेरे रहे को हैं कि तकलीफ छोटों होती को है। कहने से कुछ नहीं होता, तो छोटे जो मर्जी कहते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? जब बड़ों ने फतवा दे दिया है कि भाई ये किताबें जाली हैं, कलमा कुफर है, ठीक है जी, कलमा छोटे अपनी पढ़वाना, खुद निस्बत जो को है ना नबी बड़ों की तरफ कहना, करते खुद हैं। को रसूल कहना, ये छोटे सारे अपनी अवामिल निस्बत जो हैं ये बड़ों की कुफर तरफ हैं। करते हैं। साकिब मिसबाई साहब अपनी जो है ना निस्बत बड़ों की तरफ करते हैं, ठीक है। जो भी छोटे हैं ना वो अपनी निस्बत बड़ों की तरफ भाई करते हैं। ये तो अब मुझे उनमें बता सर दें फर्क पड़ेगा कि आपके जब फतवा आपको आपके जो है दिखा ना दिया, बरेलवी भाइयों को जब फर्क आपको पड़ेगा। फतवा दिखा दिया, तो आप मुझे एक छोटे मौलवी की वीडियो का हवाला क्यों दे रहे हैं जब आपको मैंने बड़े मौलवी का फतवा दिखा दिया? सर आपने फतवा मुझे दिखा दिया ना, आप बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं। आप बाद ज्यादा आपने जोर की अभी भी बात नहीं है, आना, 2 साल पहले की बाद बात है आपने सर। अभी भी नहीं आना, आप साकिब यहाँ से रजाई उठेंगे ना, आप यहाँ से उठ के किसी दूसरी ब्रांड पे जाएंगे ना, आप वहां पे जाके फिर चिश्ती रसूलुल्लाह का रोना रोएंगे आप। नहीं, ये लानती काम मैं नहीं करता सर। मेरे हर जगह में नहीं, मेरी इसी ब्रॉड में मैं आके अगर कभी भी किया तो हम्म मैंने हम्म इस मामले में बात की है। बाकी हर हाँ, इस ब्रॉड में मेरी ब्रॉड पे कोई नहीं लानती है काम सर। किया है। नहीं नहीं, लानती काम नहीं किया सर। लानती काम अच्छा पता है बलोची कैसे किया? साहब देखिए आप मुझे, गाली अच्छा देंगे चले ना, मैं आपको चले गाली आप इस दूंगा, मौजू को छोड़ वही वाली देते हैं, बात इस होगी, मौजू को आप उस छोड़ हिसाब देते से हैं, मैंने लानती काम ये किया। क्लियर हो गया ना मौजू, ये क्लियर हो गया? सर आप जो बता रहे ना ठीक बता रहे, मैं कह रहा हूँ ये क्लियर हाँ, होगा अब मौजू। अगले मौजू पे आ भाई जाते हैं, काशिफ अगले भाई मौजू कह पे रहे आ ना, जाते हैं। काशिफ भाई कह नहीं रहे हैं कि काशिफ भाई लानती कहते, मैंने मजाक कहा करते हैं, और मजाक करते हैं, मजाक करते हैं, के काशिफ खैर। भाई साथ के नहीं साथ कह मेरी रहा मैं, बहस तो नहीं हुई। अब ओ भाई मैं अबू हसन भाई को कह रहा हूँ, आपको नहीं अच्छा कहा। बात सुने, नहीं नहीं, अब आप आ काशिफ जाते हैं भाई तौहीद की मैं आपके तरफ, साथ मेरी अब आ वैसे भी जाते पहले हैं, बहस अब हुई आ थी। जाते हैं बलोची भाई वो तौहीद बात की छोड़े तरफ आ जाते हैं। देखिए तौहीद से बढ़ के ना यार, ये क्लियर किसी नहीं है। मुसलमान के लिए मुझे क्लियर तो करो कोई ना अकीदा इसको। नहीं। जी क्या चीज? अरे मेरे भाई मुझे क्लियर, इस पे मुझे क्लियर करो ना। आपने जो बात की, देखो एक बात क्लियर करो, उसके बाद फिर अगली ब्रॉड में मैं आपके साथ जो है ना तौहीद पे बात करूंगा। पहले इसको मेरे से क्लियर करो ताकि मैं जी मिर्ज़ा को बताएं, सुनना छोड़ दूं। जी आप बताएं। ये तो भी देखें ना, हम अगर मिर्ज़ा को सुन रहे तो कुछ बातें हैं ना हमारे दिमाग में, इसलिए सुन रहे। चले आप नहीं तो बताएं, हम मैं पहले जवाब जो दे है देता हूँ। ना दिल्ली बरेलवी इन्हीं में ही बैठे होते थे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप मुझे देखिए पूछे, पहली मैं बात बता ये देता ना, हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ जो साकिब मिसबाई साहब है, जो दूसरे हैं ये छोटे हैं ना, इनको आप कहते हैं ना बीच में ना लाए। तो ये सब ये जो है ना कहानी शरीफें सुनाते थे, ये चीज़ें बुरी लगती है। अभी इनकी पता है आपको, मीम बन रही है, मजाक बन रही है, वीडियो बन रही, तो किस मुसलमान को अच्छा लगेगा कि उसके दीन के साथ मजाक बन रहे हैं? बनाने नहीं वाला ये कौन है? वाला खुद है। वाकया है जो चिश्ती रसूलुल्लाह मुरीदनी वाला को वाकया पेश है, कर दिया सर। आपको कसम सर लगे, मुरीदनी को आपकी पेश कर माँ दिया। की, आपके बाप की कसम मैं आपको देता हूँ, आपकी माँ की कसम देता हूँ, आपने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया साकिब जी रजा मुस्तफ़ाई साहब को या मिसबाई साहब को या नहीं नहीं अपना, नहीं, इनसे नहीं सुना है। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने किसी से नहीं सुना नहीं है। आपने पूरी ये जिंदगी तो में नहीं, किसी से भी किसी की मैंने जुबान सुना। से सुनाओ, नहीं, कभी नहीं सुना। फिर मैंने आप उनकी क्यों ये जुबान सवाल से दोहरा सिर्फ रहे ये हैं? सुना है सर, मैंने उनकी जुबान से जो सवालें सुनी ना, उनका मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ
मैं पहले तो ये सवाल थी कि जो नहीं, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ठीक है क्लियर हो गया, जाती है ये क्लियर हो गया। कुन बिस्मिल्लाह नहीं, सर चिश्ती लौटेगी रसूलुल्लाह क्लियर हो गया। हाँ ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये इस मामले हाँ, में ये क्लियर हो हो गया अब आप अच्छा, कि इसके चले साथ किताबें कभी छपी बात हुई नहीं हैं करेंगे फिर। कि ये गलत है, ये चलें, क्लियर इस हिसाब से हो अब गया आप कि अब किताबें दूसरा पर बात पूछें नहीं सवाल। करेंगे। अब आप दूसरा पूछें, आप दूसरा सवाल पूछें। मैं यही कह रहा हूँ पहले बात को मैं आपको मुकम्मल कर दूं कि ये मुझे इस पे आपने 150 साल पुरानी किताब का हवाला दे दिया, 400 साल पुरानी किताब का हवाला दे दिया, ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया कि ये उन्होंने नहीं लिखी, उनकी तरफ कुछ लोगों ने मंसूब किए, ठीक है। हम लानत उन पर ही करते जिन्होंने उन बुजुर्गों की तरफ मंसूब किया इस चीज़ को, ठीक है। बाकी मैं जो है ना हमारा जो मजाक उड़ाया ना, हमारे खुद अपने आप मौलवी जो ने पूछ मजाक रहे थे उड़ाया ना कि ये मेंबरों पे सवाल, बैठते वो आप पूछें, कोई जी बात जी। हाँ, वो जो बोलते हैं इनकी मुझे चंद वाक़िया आप मुझे क्लियर कर दे, अगर आपके पास जवाब हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर जी आप जी, अगली आप वीडियो में पूछें, मैं कोई आगे बात भी पूछें, आप बढ़ कोई बात। ये जो छील उड़ रही थी, ठीक है, छील को नीचे गिरा दिया, उसका गर्दन 2 टुकड़े हो गए, बाद में उसको जोड़कर जो है ना ख्वाजा साहब कहते हैं कुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए, एक ये वाक़िया, और एक मुरिदनी को कैच करने वाला वाक़िया, ठीक है, और एक लोटे की टूटी जो है ना मैं किबला रुख आपको नहीं इसका ना करने की एक ज़मीन पे आपको मार मैं दिया इसका मंतकी जवाब देता हूँ आपको। देखिए मेरी बात जी। सुने कि करामत कोई वही भी है बात ना, मेरी, एक मिनट सर, मेरी एक सुन मिनट, लें, मेरी जरा बात सुन। एक छोटी सी बात है, वल्ला छोटी सी जी बात है, मैं जी, मेरे कसम खुदा की मैं कहा के कह रहा हूँ, मैं किसी गलत मकसद से ये नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ क्लियर करने के मैं लिए आपको पूछ रहा हूँ, आप जवाब ये दे नहीं रहा हूँ, समझे कि मेरा गलत मैं मकसद जवाब में दे उनको रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने जी, जवाब ये दे रहा जी था जी मैं सर बोले आपको कि मोहतरम, करामत जो है ना, करामत कहते ही उस चीज को है कि जो चीज आपके हवासे खमसा में ना आ सके। आपके जो सेंसेस अल्लाह ने आपको दी है ना, देखने की, बोलने की, सुनने की, महसूस करने की, ठीक है जी, ये जो सेंसेस आपको दी हैं इनको हवासे खमसा कहते हैं। करामत कहते ही उस चीज को है जो हवासे खमसा से मुबर्रा हो वो चीज, यानी कि हवासे खमसा में ना आ सके। अगर वो हवासे खमसा में आ गई है तो आप उसको करामत नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, समझ गया। करामत कहते ही उसको मेरा भाई जो कि खवार के आदत काम हो, खार के आदत काम इसको कहते हैं। सर करामत मैंने सुना है, हाँ, करामत में अब सुन ले मेरी बात। आप किसी करामत को ये कह सकते हैं कि यार ये सही सनद से हम तक नहीं पहुंची, लिहाजा हम इस करामत को नहीं मानते, लेकिन मुतलकन करामत का इनकार करने वाला वो मुतज़िली है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। वो सबसे पहले करामात का इनकार मुतज़िला फिरके ने किया था, और मुतज़िला जो है वो गुमराह फिरकों में उनका शुमार है। हमारे जो ये हैं अपना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गुनियत तालिबीन के अंदर बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है कि वो मुतज़िला जो थे वो गुमराह करामत को फिरका था। मानते हैं? मेरी बात सुन ली, करामत का जो बंदा मुनकिर होगा वो दायरे इस्लाम से खारिज है, बिल्कुल, वो अपने आप को मुसलमान ना बिल्कुल समझे। जी जी, ये तो मुझे अब पता आप है, इसमें कहते तो कोई हैं, शक अब नहीं। आप पता क्या कहते हैं, मिर्जा इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई करामत हमें दिखाओ, पहले कैमरे के सामने हम करें, कैमरे के वीडियो बनाएं और उस वीडियो में वो कैप्चर हो वो करामत, फिर हम मानेंगे। भाई यही बात तो मुल्हिदीन कहते हैं। वो कहते हैं भाई वो चांद 2 टुकड़े हुआ था, करो दोबारा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ हमें, हम वीडियो बनाना चाहते हैं। नहीं, मिर्जा साहब ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना जी, दाओ व्हाइट हाउस उठा के लाओ इधर मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर खोला आके, कहते फिर हम हाँ, मानेंगे। वो कहते हैं ना। अब देखिए ना, एक वाकया तारीख के अंदर दर्ज हुआ है, अब वो वाकया हुआ है, रोनुमा हुआ है, अब आप कह रहे नहीं जी वो मुझे दोबारा करके दिखाओ तो मैं फिर मानूंगा। ये नहीं अक्लमंदी है ये वाली? मैं तो आपकी बात से एग्री किया। मैं आपसे ये जो बापा जानी है उनके वालिद गिरामी, ठीक है, उनकी जी चारपाई हवा में उड़ गई थी, सही है, जी इसके वजह से जी, इस पे भी बहुत मजाक उड़ी है, ठीक है। कह रहे हैं कि अब जब से देखें, कैमरों को दौर आ अच्छा गया जरा अब करामतें नहीं बात दिखती। सुन लें, ऐसी बात नहीं है मेरा भाई। अब मैं आपको जो चीजें बयान, मैं कहूंगा कि जी मैं आपको ये बयान करता हूँ, आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे, मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रूफ नहीं होता मेरा भाई। जब आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता है ना, तो वो सिर्फ आपको महसूस हो रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि यार ये वाकया मेरे साथ पेश है। आपके सामने चाहे हजारों लोग भी मौजूद होंगे ना, उनको वो चीज फील ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा होगा आपको, हाँ तो तकलीफ बिल्कुल, आपको होगी, साथ वाले को तो नहीं पता, वो तो खड़ा हंस रहा नहीं होगा पता, आपके साथ। बिल्कुल
अच्छा नहीं, वो तो चलो एक बात होगी ना कि भाई एक चीज आपकी सेंसेस में आ गई, तो टीका लगाया, आपको महसूस हुआ, दर्द महसूस हुई, ठीक है जी, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब भी कोई करामत आपके सामने कोई ऐसा वाकया पेश आ रहा हो जो कि खारिक आदत हो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, फौत हो गया, फौत होने के बाद अल्लाह का नेक बंदा है, अब किसी उसकी रूह कहीं पर ट्रैवल कर रही है, अब उसकी रूह ट्रैवल करती है, अब वो हो सकता है कि अपने किसी बेटे को, बेटी को, अपनी बीवी को वो महसूस हो और किसी को महसूस ही ना हो। अब उसकी बीवी कहेगी जी मुझे महसूस हुआ है, बेटी कहेगी मुझे महसूस हुआ है, या मेरा बेटा कहेगा जी मुझे महसूस हुआ है। अब दीगर लोग पूछेंगे भी हमें हवाला दो, हमें सबूत दो, हमें वीडियो बना के दिखाओ। कहा कैसे तुमने ये, तुम तो झूठ बोल रहे हो। वो आपको प्रूफ नहीं दे सकता इस चीज का। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, ये नहीं मैं कह रहा कि हकीकतन ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता होगा, ये नहीं मैं कह रहा, सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल से समझाया है कि कोई भी खारिक आदत जो काम है ना, वो जरूरी नहीं कि आपके अलावा सारी दुनिया को नजर आए। अब मैं जी आपको बिल्कुल। एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, आप माने या ना माने, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती मैं कहूंगा नहीं भी गन पॉइंट पे नहीं मेरी बात मानो। अब हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक अंग्रेज था, उसने इस्लाम कबूल किया यूके के अंदर। अब वो जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया ना, तो वो पाकिस्तान आया, वो तो उसी जमात के साथ जिन्होंने उसे इस्लाम कबूल करवाया था ना, उन्हीं के साथ वो पाकिस्तान आया। उसने ना उनसे एक सवाल पूछा हुआ था, कहता भी इस्लाम तो मैंने कबूल कर लिया, लेकिन मुझे ये बताओ तख्ते बल्कीस जो था वो आंख झपकने से भी पहले वो कैसे आया था, बस इसका जवाब दे दो। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ पाकिस्तान चले, हम आपको वहां पे जाके जवाब देंगे। वो पाकिस्तान साथ ले आए इधर। अब वो यहाँ पे जब आए ना, तो उनसे पूछा, यानी कि गुजरे ना वहां से, लाहौर दाता दरबार के पास से गुजरे ना, तो उन्होंने कहा ये बड़ा रश है यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग। तो वो उन्हें कहते हैं ये शिरक करते हैं यहाँ पे, बरेलवी मुशरिक हैं, शिरक करते हैं यहाँ पे। तो उसने कहा कि यार मैं भी सारी जिंदगी मुशरिक रहा हूं, मुझे दिखाई इधर ये मुसलमान किस तरह से शिरक करते हैं। अब वो बंदा जो है ना वहां पे दरबार के अंदर एंटर हुआ ना जब, तो एक बुजुर्ग आए उसके पास, उन्होंने आके पूछा जी कुछ खाएं पिएंगे। उसने कहा जी मुझे चाय की तलब हो रही है। वो बाबा जी ने ना आनन फानन कप चाय का ना उसके आगे कर दिया। वो जैसे ही उसने कप चाय का देखा ना, तो वो बेहोश होके गिर पड़ा वहां पे। उसको होश दिलवाई, होश में आया, कहता है बाबा जी, अब वो पूछता है वो बाबा जी किधर गए हैं। उन्होंने कहा भी कौन से बाबा जी। कहता है अभी इधर मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे चाय का कप सर्व किया था। तो कहा फिर क्या हुआ, क्या था उसमें कप में। कहता है वो कप मेरे घर का कप था, इंग्लैंड मेरे घर का कप था वो। अब देखिए मेरी बात सुने, वो जो बंदा है और आसिफ भाई, अंग्रेज, एक मिनट फैजान भी, एक मिनट फैजान भी, एक मिनट फैजान भी, एक मिनट, वो नहीं उन भाई को बात बाबे, मुकम्मल करने दो। हाँ जी जी, जी। अब वो उस बुजुर्ग ने उसको जवाब दिया कि किस तरह से मलका बिल्किस का तख्त आया था, ऐसे आया था, उन्होंने उसको जवाब दिया उसको। उसके बाद वो बंदा सारी जिंदगी वहां पे झाड़ू देता रहा और वहीं पे फौत हुआ, और वहीं पे बेसमेंट के अंदर उसकी कब्र है, बेसमेंट के अंदर उसकी कब्र है, वो बंदा वहीं पे फौत हुआ वो। अच्छा अब आप में से कोई बंदा कहेगा जी मुझे वो करके दिखाएं जी, वो वीडियो कैमरे में ना मुझे वीडियो बना के दिखाएं। अच्छा 2010 में ना मैं खुद गया वहां पे दरबार पे दाता साहब। ये वाकया मैंने पहले दोस्तों को भी सुनाया है, माने ना माने उसकी मर्जी है भाई, मैंने अल्लाह को जान देनी है। मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ऊपर लानत है अल्लाह की, कुरान में अल्लाह ताला की जात ने झूठों पे लानत भेजी है।